السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریلوی کس طرح سے کسی شخص پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو بالکل اللہ سے خوف نہیں رہتا۔ یہ ارشد رضا صاحب ہیں، جن کو بریلویوں کا علامہ کہا جاتا ہے، مناظر اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو کال کر کے پریشان کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کی الزامات لگا کر انہیں گستاخ رسول ثابت کرتے ہیں۔ لیکن آج انہوں نے میرے پاس کال کیا اور ایک شخصیات جس کو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو انہوں نے جھوٹ بولا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری جو کہ ایک راوی ہیں اصول حدیث کے، اس کو سفیان ثوری پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ثقہ راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حافظ زبیر بن زئی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نماز میں ہاتھ باندھنے کا مقام، اس میں کہا ہے کہ سفیان ثوری ضعیف راوی ہیں۔ جب ہم نے ان سے مطالبہ کیا تو یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مکاریاں۔ ہیلو آپ جس ویکتی ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے محمد رضا صاحب۔ جی، اصولی نماز بات پڑھ لیا؟ کریں گے یا مطلب بڑبڑ کریں گے؟ بتائیں۔ نہیں، نماز پڑھ لی آپ نے؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آدمی والی پڑھی کہ عورتوں والی پڑھی؟ وہ تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتائیں ٹائمنگ رکھیں گے بات کرنے کی؟ جی 1 منٹ کا ٹائم رکھیں گے یا عورتوں والے بولو گے آپ؟ جیسے جی عورتیں چلاتی ہیں بیچ میں، آپ تو اتنا غصاتے ہیں، کچھ کہنے نہیں۔ جیسا عورتیں چلانے لگتی ہیں ایسے چلا رہے ہیں۔ میں نے تو صرف آپ کو کہا تھا کہ عورتوں والی نماز پڑھیں میں گے بھی تو کہ یہ کہہ رہا مردوں ہوں، تم والی؟ عورتوں کی طرح بولتے ہو، بولنے نہیں دیتے۔ 1 منٹ رکھ کیا لو نا، آدمی نہیں بولتا ہے کیا؟ 1 منٹ رکھ لو نا۔ چلیے 1 منٹ رکھ لیتا ہوں۔ قسم کھاؤ اعلیٰ حضرت کی، کیا؟ اعلیٰ حضرت کی قسم کھاؤ، نہ بولو۔ کس کی قسم؟ اعلیٰ حضرت کی قسم کھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کی کہیں قسم کھائی جاتی ہے جناب؟ تو پھر اصول توڑو گے تو نہیں؟ نہیں، اصول نہیں توڑوں گا۔ 1 منٹ یا 1 جو منٹ سے بیچ میں کم آپ بولا، بھی بول سنیں لیجیے۔ سنیں ارشد، پھر بولے جو بیچ میں بولا وہ 2 باپ کا ثابت ہوگا، اچھا، یہ اصول آپ نے کہاں سے پڑھا بھائی؟ کیونکہ اس سے گندا اصول کوئی ہو بھی نہیں سکتا آپ میرے نزدیک، تو ایسے نہیں مانو گے نا۔ اچھا، آپ کے نزدیک ہوگا؟ ہاں کیونکہ سنیے، گندے لوگوں کو گندی ہی ایک سوچ آتی ہے نا۔ منٹ کا وقت رکھ لیجئے، جو بیچ میں بولا سمجھ لیے اس کی شکست۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، پہلے آپ اصول حدیث پڑھ کے آئے کہ نہیں پڑھ کے آئے؟ ارے میں تمہیں ابھی سکھاؤں گا، دیکھو کیسے بھاگو گے تم ابھی؟ ابھی۔ ارے واہ واہ ماشاء اللہ، وہ تو دکھے گا ابھی، میں آپ کو دیکھتا ہوں چلے کتنی ٹھیک ہے، آپ نے اب اصول چلتے حدیث ہیں، پڑھی۔ بات کرتے ہیں۔ سفیان ثوری پہ بات ہو رہی تھی۔ اچھا، تو پہلے آپ مطلب آپ پہلے میں بولوں گا، بات کریں گے؟ پہلے میں بولوں گا۔ اچھا، کتنی منٹ بولیں گے؟ 1 منٹ۔ اچھا 1 منٹ آپ بولیں گے؟ ہاں چلیے، آپ کا 56 ہو رہا ہے، 56 ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور سیکنڈ کا کیسے گنیں گے؟ کوئی دقت نہیں، 19-20 ہو جاتا ہے، چلیے مانتے ہیں اس کو، تو آپ کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا نا۔ چلے ٹھیک ہے، چلیے بولوں؟ بولیے بولیے بولیے۔ آپ نے کہا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، یہ طبقہ ثانیہ میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین میں ذکر کیا ہے، اور آپ کے نزدیک طبقہ ثانیہ قبول ہے اور طبقہ ثلاثہ آپ کے نزدیک بھی قبول نہیں ہے، جس کی وضاحت ابن حجر عسقلانی نے کی ہے۔ میں الزامی جواب پہلے دوں گا، پھر بعد میں علم میں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں المصنف ابن ابی شیبان، اس کا حدیث کا نمبر ہے 6487۔ اس میں ہے کہ حضرت نافع 7794، اس میں ہے کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ تم گدھے کی طرح منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو ان کے پیچھے امام کے۔ اس حدیث میں سارے راوی ثقہ ہیں۔ میں آپ کو سند پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حدثنا وقی عن سفیان عن منصور عن مجاہد۔ اب یہ بتا دیجئے کہ سارے راوی ثقہ ہیں اور سارے اول درجے کے تدلیس کرنے والے ہیں سوائے سفیان ثوری کے، تو اس میں سفیان ثوری ہے، اس روایت کو ماننے سے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ امام
सॉरी इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि तो गधे की तरह खड़ा होता है जो इमाम के पीछे तरावी पढ़ता है। इसका जवाब दीजिए, फिर इंशाअल्लाह आगे बता। मैं बोलूं? बोलो आप। चलिए 57 हो गए आपके हैं, 57 चलिए हो गए। जैसे आपने ये बात मुझे अर्ज की है, आप पहले अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, बात को वाज़ेह तौर पर आया कर लीजिए। मेरी आपकी बेड़ा गड़प करने वाली बातें आप फजूल की मत करिए। यहाँ पे लोग स्टैंडर्ड लाइफ के लोग हैं, उसको समझिए। पहले ये बात आप ये याद रखिए कि आप सुफियान सौरी की बात कर रहे हैं। आप जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस लिए हैं और इब्न उमर की जो आपको कॉल कर रहे हैं, ये बातें यहाँ पे मत कीजिए। आप मुझे ये साबित करके दिखाइए कि सुफियान सौरी जो है वो ज़ईफ रावी है, वो ज़ईफ रावी है, ये साबित करके मुझे आप बताइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सीधी से मेरा मुतालबा यही है, क्योंकि आपकी मेरी गुफ्तगू हुई थी वो क्या नाम है मौजमुल कबीर के ऊपर, और आप जो है सुफियान सौरी के ऊपर लिए आए। ठीक है, तो आप लिए आए आखिर, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहले आप मुझे इनकी हदीस बताइए कि इनकी रिवायत करदा पेश सही है कि नहीं सही है, तब आपसे आगे मैं बात करूंगा कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो हदीस आप नंबर बता रहे हैं, और वकी और मंसूर और मुजाहिद ये जो आप फर्क पढ़ रहे हैं, इसको छोड़िए। पहले आप बताइए कि इनकी सिकाहत के ऊपर दलालत करती है कि नहीं करती है। जैसे नाफरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा है, और आपके जुबैर अली ज़ई साहब ने अपनी किताब के अंदर नमाज में हाथ कहाँ बांधे उसमें लाते हैं, उसको ज़ईफ करार देते हैं। अल्लाह हालांकि जो है आपके अलबानी साहब उसको सही कहते हैं, वो कहते हैं लम यकुल गैर मोहम्मद बिन इस्माइल का लफ्ज लाते हैं वो। उसके बाद आप बात करिए। चलिए मैं आपको वक्त देता हूँ, बोलिए जी, बोलिए, इसके ऊपर बात करिएगा आप मुझसे। मैं अपने आवाज वक्त देता हूँ, मेरे बीच में ना बोले। चलिए बोलिए। ये है अरशद साहब मुनाजिर आजम कहने वाले आपको। मेरे बीच में ना बोले, ये कह रहे हैं। हाँ, मुझे बोलने देंगे? मैंने शुरू में कहा कि मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूँ, इल्मी जवाब बाद में दूंगा। ये साहब है, मुझे इनकी पढ़ाई पे, इनके उसूल हदीस पे शर्म आ रही है कहते हुए। खैर, इनके नजदीक मैंने कहा अगर सुफियान सौरी तबका सानिया में कबूल है तो ये रिवायत का क्या करेंगे? इमाम के पीछे तो तुम गधे की तरह खड़े हुए, तुम बकौल इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसका जवाब नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता है कभी जिंदगी में इनसे जवाब नहीं आएगा। अब मैं एक आपको चीज पेश कर देता हूँ। इमाम सुफियान सौरी को कभी भी हमने वो नहीं कहा कि रावी ज़ईफ है, उसकी सिकाहत पर तमाम मुहद्दिसीन का इजमा है। अब मैं एक आपको बताता हूँ, इमाम इब्न अस्सलाह। तो आपका वक्त खत्म हो गया। चलिए 8-11 हो गए, वो 8-1 हो गया, आपका वक्त खत्म। आपने अभी जुमला ये कहा कि तमाम जो है क्या नाम मुहद्दिसीन का इसके ऊपर इजमा है, उनको किसी ने ज़ईफ नहीं कहा है। आपकी याददाश्त को मैं ताज़ा कर दूं, आपको खुद नहीं मालूम है जुबैर अली ज़ई का उन्होंने खुद लिखी है नमाज में हाथ कहाँ बांधे, उसमें उन्होंने जो क्या नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल वाली जो हदीस है सुफियान सौरी, उसको ज़ईफ कहा है। तुम्हारे मुहद्दिस ने उसको ज़ईफ कहा है, और आप कह रहे हैं कि पूरे उसूल के तुम्हारे मौलवी ने उसको ज़ईफ कहा है। हवाला भेजो, अगर आपके पास हवाला ना हो। एक बात याद रखिए, आपके मौलवी ने खुद उसको ज़ईफ कहा है। सारे मुहद्दिसीन के ऊपर कलेजे के ऊपर पैर रख के कलम को तोड़ कर तुम्हारा मौलवी उसके ऊपर लिख रहा है कि वो ज़ईफ रावी है, और सारे मुहद्दिसीन तुमने ये बात लिख ली, अभी बोल दी, रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, तो उसने सबके ऊपर सही कहा है। तो सही कहा है तो आपके मौलवी तो उसको ज़ईफ कह रहे हैं, इसके ऊपर कब आप बताएंगे? चलिए मैं आपको वक्त देता हूँ, चलिए मेरा वक्त आप ले लीजिए। चलिए बोलिए, 2 हो गया। ये देखिए सामीन इकराम, जो मैंने सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं आया कि इमाम सुफियान सौरी की अगर समझ तस्दीक के बगैर आप रिवायत मानते हैं तो इसमें तुम्हें क्या हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गधे की तरह खड़े हो गए इमाम के पीछे बकौल इब्न उमर। दूसरी बात, इमाम हाफिज जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब के अंदर खुद इमाम सुफियान सौरी को ज़ईफ नहीं कहा। एक हवाला दिखाएं कि उन्होंने सुफियान सौरी को ज़ईफ कहा। चले झूठ ना बोले, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपके ऊपर वो हवाला भेजता हूँ। आपको खुद नहीं मालूम है जुबैर अली ज़ई ने उसको ज़ईफ कहा है? आपको खुद अभी इसके ऊपर सुफियान सौरी को हदीस को नहीं, सुफियान सौरी किसको? सुफियान सौरी को। तो सुफियान सौरी ज़ईफ नहीं, अभी तो आप उसको ज़ईफ मार रहे थे। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैंने कहा कि तमाम मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि सुफियान सौरी। सुन बोले, आप बोले, मैं बोल रहा
नहीं बोलिए ना, चलिए बोलिए, मैं आपको पाबंदी से आजाद करता हूँ, बोलिए ना। मेरे बीच में बोल रहे हैं आप। नहीं तो बोलिए ना, जब आपने वक्त दिया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपको इजाजत देता हूँ, बोलिए। ठीक है, मेरे बीच में ना बोलना। मैंने ये कहा कि तमाम मुहद्दिसीन का इस चीज पे इजमा है कि सुफियान सौरी सिका रावी हैं। मैंने ज़ईफ कब कहा? दूसरी बात, सिका रावी भी मुदल्लिस होता है, इससे उसकी तज़ीफ नहीं होती, वो सिका ही रहता है। मैंने ये कहा है कि तमाम मुहद्दिसीन का इस चीज पे इजमा है कि सुफियान सौरी मुदल्लिस, और ये कह रहे हैं जनाब कि तुम्हारे जुबैर साहब ने कह दिया कि वो ज़ईफ रावी। कहाँ पे कहा? बोलिए, टाइम दे रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे कहा? कहाँ पे कहा? उनकी किताब है नमाज में हाथ का। रुको, मैं खोल रहा हूँ किताब। हाँ, मैं आपको मैं खोल रहा हूँ किताब। हाँ, नमाज में हाथ कहाँ बोले? वो आप नमाज में हाथ कहाँ बोले? उसकी चौथे नंबर के दलील सैयद ने खुज़ैमा को कुरान से रिवायत करने वाले को कहा है। भेजो, उन्होंने सुफियान सौरी को ज़ईफ कहा। हाँ, मैं भेजता हूँ, चलिए। सुफियान सौरी को पता नहीं ज़ईफ। क्या पढ़ के आते हो तुम लोग जल्दी यार, भेजो, जल्दी, अभी बताऊंगा। इतनी देर से मस्त कर रहे हो तुम लोग। अभी बताऊंगा आपको। जो जुबैर साहब पे झूठ बोल रहे हो, जुबैर साहब पे झूठ बोल रहे हो, ये स्कैन में भी लगाया जाएगा। बिल्कुल भेजो अभी यहाँ पे कि जुबैर साहब ने सुफियान सौरी को ज़ईफ कहा है। नमाज में हाथ कहाँ बने? रुक जाओ, सुफियान सौरी को ज़ईफ कहा है? दिखाता हूँ आपको। नमाज ये भी जान लीजिए, तदलीस इससे तज़ीफ नहीं होती रावी की। अभी आपको क्या मालूम? अभी आपने उसूल हदीस पढ़ा कहाँ है लल्ला? अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी आपको झूठ सामने। अभी आप पढ़ के आइए, तब तो दूसरों को पढ़ाएंगे। अभी तो तुम फंस गए ना इब्न उमर वाले में, नहीं याद आ गया। अगर हवाला मौजूद ना हो, बीच में ना बोलना, चलो हवाला पेश करो, बाद में बात करूंगा। पेश करता हूँ मैं। कहाँ पर जुबैर साहब ने कहा? नमाज में हाथ कहाँ बने? जुबैर की किताब है ये? नहीं, ये दूसरे की है। नहीं, ये दूसरे की किताब है, ये दूसरे की किताब है। नमाज नबी तो इनकी किताब है, वो दूसरे की है। हाँ, नमाज में कहाँ हाथ बाने? हज़रत हाफिज सनाउल्लाह ज़िया, इनकी दूसरी किताब है। एक मिनट में देखता हूँ। जुबैर अली ज़ई साहब, आगे किताब मैं आपको हवाला भेजता हूँ, नोट करते भेजो, स्क्रीन भेजो। स्कैन भेजता हूँ। क्यों बार किताब का फ्रंट पेज, सुनो मोहम्मद रजा साहब, किताब का फ्रंट पेज और स्कैन भेजो जल्दी, मैं खोलना ही हूँ। भेजता हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल भेजो, मैं आपको भेजता हूँ। एक मिनट। दलील नंबर की नाप के नीचे हाथ बांधने लिखी दलील, इसको काटते हुए सीने पर हाथ बांधना। दलील नंबर नमाज में हाथ कहाँ पे बांधे हैं? जुबैर अली ज़ई साहब की किताब भेजो जरा मुझे, और उसका स्कैन प्रिंट भेजो। अच्छा, तो आपने क्या, आपको मालूम है कि जुबैर अली ज़ई साहब पहले भेजो, बाकी बात होगी, अभी रुको, भेजना। ये भेजता हूँ। नमाज में हाथ कहाँ बांधे? हाफिज जुबैर अली चाहिए। अच्छा, पहले आपको फ्रेंड भेज देता हूँ। बड़े आप जो है, बड़े आप जमकगार है। ये देखिए, पहले आपके पास आ रहा है, बिल्कुल फ्रंट पेज आ रहा है। पहले आपने खुद नहीं पढ़ा बेचारों ने। नहीं, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। के ऊपर सुफियान सौरी को कहाँ पर ज़ईफ कहा? अच्छा, मैं भेजता हूँ। पहले ये देखिए, फ्रेंड इसका लीजिए पहले आप। आई नहीं अभी तो कुछ भी। एक मिनट। रजा साहब, रजा साहब, अब ये देखिए इनकी किताब है नमाज में हाथ बांधने का हुक्म। ये देखिए जुबैर ज़ई साहब की। आप ये देखिए, पहले टाइटल देखिए, टाइटल आप मांग रहे थे, ये देखिए। अब इसके अंदर का मैं देता हूँ आपको। अभी मैं आपकी बुक को मिटाता हूँ कायदे से। पाया आपने? नहीं पाया? स्कैन भेजना ना आगे का। हाँ, स्कैन भेज रहा हूँ, क्यों परेशान है? एक मिनट आप फोन कट करिए, मैं आपको स्कैन भेजता हूँ। बिल्कुल भेजिए। हाँ, थोड़ी देर बाद इन साहब ने मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज किया और एक ऑडियो छोड़ी। वो ऑडियो पहले आप मुलाहिजा फरमाइए। जनाब, ये खुद आपके जो है जुबैर अली ज़ई साहब खुद कह रहे हैं इसके अंदर में, इस सनद में आसिफ बिन कुलैब और उनके वालिद दोनों जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक सिका और सुफियान सौरी सिका है मगर मुदल्लिस है, लिहाजा इनकी सनद ज़ईफ है। और मुदल्लिस रावी के अगरचे मोतबर मुताबियात या कभी शवाहिद मिल जाए तो मुदल्लिस का इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। तो सामीन इकराम, आपने इनकी ऑडियो को मुलाहिजा फरमाया। अब आप देख सकते हैं कि इन साहब ने हाफिज़ जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह पे कितना बड़ा झूठ बोला। हाफिज़ जुबैर अली ज़ई खुद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि सुफियान सौरी सिका रावी हैं लेकिन मुदल्लिस हैं। फिर इन्होंने एक और झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। हाफिज़ जुबैर अली ज़ई के आप ये देखिए, स्कैन में अल्फाज देख सकते हैं। हाफिज़ जुबैर अली ज़ई कहते हैं कि ये सिका रावी हैं, मुदल्लिस हैं, लिहाजा ये सनद ज़ईफ़ है। उन्होंने सनद को ज़ईफ़ कहा है, ना कि रावी को।
تو یہ اس طرح سے جھوٹ بول کر اپنی آڈیو میں یہ پھر باتیں بنانے لگے کہ اس طرح سے ضعیف ہے، اس طرح سے کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے، اور ہم حافظ زبیر علی زئی اور جو بھی حق بولنے والے حضرات ہیں ان کا دفاع کرتے رہیں۔